A very warm welcome kids to your science class. So let's start with class 4th science book Periwinkle, a book of science and life by Coral Publishers. And let's start the chapter number 8. Force, work and energy. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे force, work और energy के बारे में. So firstly, the learning outcomes. Define motion and force. Motion और force के बारे में define करेंगे. Then discuss the types of force. Describe work and energy. Discuss the types of energy. कितने तरह की energies होती हैं, किस किस तरह की energy होती है. Define a simple machine. एक simple machine क्या होता है? Discuss the working of simple machines. Work कैसे करती हैं simple machines, उसके बारे में भी discuss करेंगे. The breaking point, every day we use the term force. Daily हम ये term use करते हैं force. But what is the force? ये force होता क्या है? We apply force on the pedals of a bicycle to move it. जब हमें bicycle को आगे move करना होता है तो हम उसके pedal पे force लगाते हैं. We apply force on brakes to stop a moving bicycle. और उस moving bicycle को जब हमें रोकना होता है तो हम brakes लगाते हैं. We apply force to hit a ball at rest or to stop a moving ball. एक बॉल को जब बॉल रखी हुई है उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो मूव करती है और उस मूविंग बॉल को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. कैन यू डिफाइन फोर्स? गिव 2 more examples of force. अब फोर्स क्या होता है आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट विल रीड अबाउट व्हाट इज मोशन. वी सी मेनी थिंग्स मूविंग अराउंड. बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर मूव करते हुए देखते हैं हम. We see vehicles moving on the roads. We see birds flying in the sky. We see people walking or running. Ships, steamers and boats move on water surface. The planets move around the sun. The moon moves around the earth. अब देखिए ये सारी चीज़ें मूव करती हैं, हम ये सब चीज़ें मूव करते हुए देखते हैं. व्हीकल्स रोड पे हम देखते हैं व्हीकल्स मूव कर रहे हैं. स्काई में हम देखते हैं बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं और लोग रोड्स पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं. शिप और स्टीमर्स मूव कर रही हैं पानी में. प्लैनेट मूव कर रहा है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. मून हमारे किसके अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है. अब all the moving things change their position continuously with respect to their surroundings. अपने surroundings के according वो अपना position continuously change करते रहते हैं. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings with time. अब एक body को motion में कहा जाता है कब, जब वो अपना position change करती है अपने surroundings के according और time के according. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with time. Time के साथ अपने surroundings के according body अगर move नहीं कर रही है तो उसे किस पे कहा जाता है, rest पे कहा जाता है. Fine, that body is at rest अगर वो अपना position change नहीं कर रही है. Now children, let's see what is force. Now children, let's see what is force. A push or a pull that we apply on an object is called a force. किसी भी object पे अगर हम push करते हैं उस object को या pull करते हैं उसे कहा जाता है force. In cricket, a fielder applies a force on the ball to stop or catch it. अब आपने cricket match देखा होगा, उसमें जो moving ball होती है उसको रोकने के लिए या कैच करने के लिए एक फील्डर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है बॉल पे. अ फुटबॉलर किक्स अ फुटबॉल एट रेस्ट टू मूव इट. एक फुटबॉलर उस फुटबॉल पे किक मारता है उसको मूव करवाने के लिए. वी अप्लाई अ फोर्स व्हेन वी लिफ्ट समथिंग. हमें कुछ उठाना होता है अगर तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जोर लगाते हैं. You apply force on the pedals of a bicycle to move it. You also apply force to stop your moving bicycle.
बाइसिकल को चलाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है, उसे रोकने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं। सी अप्लाइंग फोर्स ऑन पेडल्स ऑफ अ बाइसिकल टू मूव इट। बाइसिकल के पेडल्स पे फोर्स लगाते हैं तो वो आगे चलती है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, एक फोर्स लगाने से वो मूव कर सकती है। यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द पेडल्स ऑफ योर बाइसिकल टू मूव इट। इन फुटबॉल अ प्लेयर किक्स अ बॉल टू मूव इट। अलग अलग तरह से फोर्सेस लगते हैं। किसी बाइसिकल को चलाने के लिए पेडल्स पे फोर्स लगाते हैं और बॉल को मूव करवाने के लिए एक फुटबॉलर उस पर किक मारता है। अ फोर्स स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्स से ही मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका भी जा सकता है। इन क्रिकेट अ फील्डर स्टॉप्स और कैचेस अ मूविंग बॉल हिट बाय द बैट्समैन। अभी आपने पढ़ा कि किसी भी मूविंग बॉल को एक बैट्समैन ने जो बॉल हिट की है, उस मूविंग बॉल को रोकने के लिए फील्डर उस पर फोर्स लगाता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स से मोशन का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विद द बैट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, उससे वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स लगाने से शेप भी चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की। कैसे? इन क्राफ्ट यू अप्लाई फोर्स ऑन क्ले टू गिव इट अ डिजायर्ड शेप। आप एक क्ले जब क्राफ्ट का वर्क करते हैं तो क्ले पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसे अलग अलग शेप देने के लिए। सी लुक हियर, क्ले मोल्डेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। एक क्ले को आप फोर्स लगा के कितने सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। There are several types of forces which are discussed below. Muscular force. Muscular force refers to the force of our body muscle. हमारी body muscle का जो force होता है उसे कहते हैं muscular force. When we push or pull a door with our hand, we apply our muscular force on it. जब हम किसी दरवाजे को पुश करते हैं या पुल करते हैं अपने हाथ से, तो हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स। अ पर्सन अप्लाइज द मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट अ वेट। कोई वेट, भारी चीज उठाने के लिए भी हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। पीपल अप्लाइज मस्कुलर फोर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। आपने देखा होगा बच्चों, कुएं से जब पानी खींचा जाता है, पानी निकाला जाता है, तो फोर्स लगा के उसे खींचते हैं। जो बाल्टी अंदर होती है उसको फोर्स लगा के पानी भर के उसमें और कुएं से बाहर खींचा जाता है, उसमें भी मस्कुलर फोर्स लगता है। अ हॉर्स ड्रॉज अ कार्ट यूजिंग इट्स मस्कुलर फोर्स। और हॉर्स भी जब एक कार्ट को खींचता है तो उसकी मस्कुलर फोर्स लगती है उसमें। अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट अ वेट। Next comes the gravitational force. We live on the earth. The earth applies a force on every object to pull towards it. हम कहाँ रहते हैं? धरती पे रहते हैं। और जो अर्थ है हमारी, जो धरती है, वो क्या करती है? एक फोर्स अप्लाई करती है हर चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। This force is called gravitational force. और इस फोर्स को कहते हैं gravitational force. Throw a ball upwards. The ball comes back to the ground. आपने कभी बॉल को ऊपर फेंक के देखा है? कहाँ आती है? क्या वो खो जाती है स्पेस में जाके? No, it always comes down. नीचे आती है ग्राउंड की तरफ। This happens because of the force that attracts all the objects towards the earth. ये किस वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से सभी चीजें नीचे की तरफ आती हैं। जो भी हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आती है। A fruit or leaf detached from a tree falls on the ground instead of going left or right. अब पेड़ से जो पत्ता गिरता है, क्या वो ऊपर जाता है गिरने के बाद, या लेफ्ट में या राइट में गिरता है? No, it just falls down on the ground. This is because of gravitational force of the earth. और ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ऐसा होता है। द सन, मून एंड प्लैनेट्स। ये तीनों चीजें, जो सन है, मून है और प्लैनेट है, मूव इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सन, मून और जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं। फाइन।
सी अ फ्रूट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, फ्रूट भी जमीन पे ही गिरता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। हैव यू सीन अ मैग्नेटिक, मैग्नेट देखा है आपने कभी? बहुतों के पास होता है मैग्नेट। व्हाट डज इट डू? इफ यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर आयरन नेल्स, इट अट्रैक्ट्स देम एंड दे क्लिंग टू इट। किसी भी मैग्नेट को जब आप जो आयरन की नेल्स होती हैं, जो कीलें होती हैं, उसके पास लाते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नेट सभी कीलों को अट्रैक्ट कर लेता है और सारी कीलें चिपक जाती हैं इस मैग्नेट पे। सी द मैग्नेटिक फोर्स। The force which a magnet applies on iron nails to attract them towards it is called magnetic force. और ये जो फोर्स एक मैग्नेट लगाता है नेल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। Many toys work on the magnetic force. बहुत सारे टॉयज भी इसी मैग्नेटिक फोर्स के बेसिस पे ही बने होते हैं। The door of a refrigerator also has a magnet to close its door. डेली आप फ्रिज का, अपने रेफ्रिजरेटर का डोर खोलते हैं और बंद करते हैं तो इसमें भी एक मैग्नेट होता है जिससे कि डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। सम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स इन वर्कशॉप्स। बड़े बड़े वर्कशॉप्स में बहुत बड़ा हैवी किसी ऑब्जेक्ट को अगर उठाना होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसे लिफ्ट करने के लिए। नाउ साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, the waste materials in factories often contain scrap iron mixed with other waste. जो फैक्ट्रीज के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसमें बहुत बार स्क्रैप आयरन होता है उस वेस्ट के साथ मिला हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू सेपरेट आयरन मिक्स्ड विद अदर वेस्ट। और वेस्ट, दूसरे वेस्ट के साथ जो आयरन मिक्स्ड होता है उसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल force. What is it? Let's read about it. Roll a ball on the leveled ground. It stops after moving through a small distance. The ball stops because of frictional force. किसी भी लेवल्ड ग्राउंड पे, जो लेवल्ड होता है ग्राउंड, उस पर आप बॉल रोल करके देखिएगा, क्या होगा, वो थोड़े से डिस्टेंस के बाद ही रुक जाएगा। और ये बॉल रुकता किस वजह से है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करता है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आर फीट एंड ग्राउंड। हमारे ग्राउंड और फीट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी कारण हम चल सकते हैं। वी विल स्लिप एंड फॉल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं हुआ हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में तो हम गिर जाएंगे। अ रफ सरफेस ऑफर्स ग्रेटर फ्रिक्शन दैन अ स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, स्मूथ सरफेस पे कम होता है। पार्ट्स ऑफ मशीन्स गो वेयर एंड टेयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं उनका वेयर एंड टेयर होता है। ओके, सी दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, बिल्कुल लेवल ग्राउंड पे बॉल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? रब अ कॉम्ब ऑन योर ड्राई हेयर एंड ब्रिंग इट नियर बिट्स ऑफ पेपर. You will observe that the bits are attracted to the comb. कभी आप जब बाल बनाते हैं तो आपके हेयर्स जब ड्राई होते हैं तो ड्राइड हेयर्स पे अपना कॉम्ब थोड़ा रब कीजिए और उसके बाद जो पेपर के पीसेस होते हैं उसके पास उस कॉम्ब को लाइए। आप देखेंगे ये जो पेपर है, बिट्स ऑफ पेपर जो हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं कॉम्ब की तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The electrostatic force is developed on the comb when it is rubbed with hair. जब आपने हेयर से अपने रब किया तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है कॉम्ब पे। This force attracts bits of paper. इससे ही जो पेपर के बिट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं। Lightning and thunder happen due to electrostatic force. लाइटनिंग और थंडर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होती है। This is electrostatic force. Now comes the work. Let's read about it. Work is said to be done when a force is applied on an object and the object moves in the direction of the force. अब काम हुआ कब कहा जाता है?
जब एक फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है। फाइन। इफ यू पुश और पुल अ बॉक्स एंड द बॉक्स डज नॉट मूव, द वर्क इज नॉट सेट टू बी डन। अगर आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं या खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो और वो बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिला, तो तब ये नहीं कहा जाएगा कि वर्क हो गया, काम हो गया। नो, द वर्क इज नॉट डन। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क। वर्क का एग्जाम्पल क्या है? जब आप कुएं से पानी निकालते हैं। When you are reading a book, you are not doing any work because there is no displacement. वर्क में डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी होता है। ओके जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक जगह पे आपकी बुक है, आप बैठे हैं और आप पढ़ रहे हैं। See, pushing a box to some distance to do work. अब पुश किया तो बॉक्स अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर गया। When you open or close a door, you do work. जब आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं उस टाइम वर्क हुआ कहा जाता है। When you throw a ball or kick a football, you do work. इन दो केसेस में भी आप वर्क करते हैं। You do not work when you try to push a wall because the wall does not move. अगर आप किसी वॉल को धक्का देते हैं, किसी दीवार को धक्का देते हैं तो उसमें वर्क नहीं होता है क्योंकि वो जो दीवार है वो अपनी जगह से मूव नहीं करती है। Okay children, understood? Now comes the simple machines. We use many machines in our everyday life. हम डे टू डे लाइफ में अपने बहुत अलग अलग तरह के मशीन्स का यूज़ करते हैं। They make our work easier and faster. इससे क्या होता है? हमारा काम easy भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। We use a bottle opener to open a bottle. It makes it easy for us to open the bottle. अब हम बॉटल ओपनर से जब बॉटल ओपन करते हैं तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए बॉटल को ओपन करना। द बॉटल ओपनर इज अ सिंपल मशीन। अब ये जो बॉटल ओपनर है ये एक सिंपल मशीन है। वी यूज अ पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। जब हम पानी निकालते हैं कुएं में से बाहर तो हम पुली का यूज करते हैं। द पुली इज अ सिंपल मशीन। और ये जो पुली है ये भी एक सिंपल मशीन है। वी यूज अ नाइफ टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द नाइफ इज अ सिंपल मशीन। ये तो हम डेली यूज़ करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट करने के लिए हम नाइफ का यूज़ करते हैं, तो नाइफ भी एक सिंपल मशीन है। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर विथ लेस एफर्ट बट दे डू नॉट डू एनी वर्क बाय देमसेल्व्स। मशीन्स हमारा काम ईजी तो करती हैं, फास्ट भी करती हैं, ईजी भी करती हैं, लेकिन ये अपने आप से कोई वर्क नहीं कर पाते। अब हमें इन पे कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है या उनसे कोई काम करना पड़ता है। ओके ये अपने आप कोई काम नहीं कर सकते। द एनर्जी दैट वी सप्लाई टू अ मशीन इज कॉल्ड इनपुट। मशीन पे हम जो एनर्जी लगाते हैं उसे कहते हैं इनपुट। द वर्क दैट वी गेट फ्रॉम द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। और उस मशीन के द्वारा जो वर्क होता है उसे कहा जाता है आउटपुट। Lever, inclined plane, wedge, pulley, screw, wheel and axle are simple machines. ये सभी simple machines हैं। Let us discuss about them. अब हम lever, inclined plane, wedge, pulley, screw, wheel इन सब के बारे में पढ़ेंगे। The lever. The lever is a common machine. एक बहुत ही common machine है lever. It has been used since long. बहुत लंबे टाइम से इसका यूज़ हो रहा है। A stick used to lift heavy weight is a kind of lever. किसी heavy weight को जब stick के द्वारा उठाया जाता है तो ये भी एक lever का kind है। You play on seesaw. It is a kind of lever. जो seesaw होता है वो भी एक तरह का lever है। You use a pair of scissors to cut clothes. It is also a kind of lever. ये scissors भी देखिए seesaw scissors ये भी लीवर का ही टाइप है। Tin shears, the nippers, pliers and handle of a water pump are another examples of lever. ये सभी tin shear, nippers, pliers और handle जो है वो सभी जो वाटर पंप का हैंडल होता है ये सभी लीवर के ही एग्जाम्पल्स हैं। Right? This axe, pliers
Different kinds of levers are these. Next, the inclined plane. An inclined plane refers to a plane inclined at an angle to the horizontal. You play on a slide. अब inclined plane क्या होते हैं? प्लेन होता है वो inclined होता है at an एक एंगल पे inclined होता है horizontal. The slide is an example of inclined plane. ये जो slide है ये inclined plane का ही example है. The ramp of our house is also an inclined plane. आपने देखा होगा घरों के सामने रैम्प बने हुए होते हैं, वो भी inclined plane के ही example है. People use wooden planks to load heavy barrels up on a truck. The plank makes a slope from the ground to the truck where the barrels are placed. अब देखिए, यूजिंग अ रैम्प टू लोड अ बैरल. अब जब कोई भी बड़ा बैरल जो लोड करना होता है ट्रक पे, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? वुडन प्लैंक्स का यूज़ किया जाता है और स्लोप होता है उसमें. देखिए, वुडन प्लैंक एक स्लोप बनाता है ग्राउंड से लेके ट्रक तक, जिससे कि इजीली वो बैरल कैरी कर लेते हैं ऊपर. रोड्स ऑन माउंटेन्स ऑल्सो यूज द आइडिया ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स. माउंटेन्स के जो रोड्स हैं उसमें भी इंक्लाइंड प्लेन्स का ही आइडिया यूज किया गया है. द वेज. अ वेज इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स. अभी जो वेज होता है, दिस इज अ वेज, ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स से बना हुआ होता है. दीज प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज. ये दोनों प्लेन्स मिलते हैं और एक शार्प एज फॉर्म करते हैं. This edge can split things apart. इस एज से चीज़ों को तोड़ा जा सकता है दो पीसेस में. Knives, axes and forks are common examples of inclined plane. A pulley is a simple grooved wheel over which a rope or chain is pulled in order to lift a weight or object. This is a pulley. ये simple grooved wheels होते हैं जिसमें कि रोप या चेन लगाया जाता है और उससे वेट को लिफ्ट किया जाता है, वेट या ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है. इन विलेजेस सम पीपल यूज अ पुली विद अ रोप टू लिफ्ट पेल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल. कुएं से पानी निकालने के लिए पुली का यूज किया जाता है. अ पुली मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग्स विद लेस एफर्ट. कम एफर्ट लगा के ईजिली भारी चीज़ों को उठाया जा सकता है पुली के द्वारा. Then the screw. The screw is a special case of an inclined plane that has been rolled up. ये एक inclined plane का ही special case होता है जिसे कि roll up कर दिया गया है. It looks like a nail with grooves cut into it. अब ये जो स्क्रू है ये नेल की तरह ही लगता है देखने में और इसमें grooves होते हैं, grooves बना दिए गए हैं. It is used to hold things together. दो चीज़ों को एक साथ होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है. We use screws in devices like a screw jack. स्क्रू जैक में स्क्रू का यूज किया जाता है. The wheel and axle. Wheel and axle is an arrangement in which a wheel rotates about an axle. एक एक्सल पे एक व्हील रोटेट करता है व्हील एंड एक्सल में. When the wheel rotates, the axle moves in a straight line. जब व्हील रोटेट करता है तो जो एक्सल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. द स्टीयरिंग व्हील, द पैडल ऑफ अ बाइसिकल एंड द स्क्रू ड्राइवर आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल. ये सभी व्हील एंड एक्सल के एग्जाम्पल्स हैं. सी, दिस इज द व्हील एंड एक्सल. ओके, जब व्हील रोटेट करता है और ये एक्सल के ऊपर ये व्हील्स लगे हुए हैं. फाइन. Now the energy. We apply force to do work. किसी भी काम को करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं. The force requires energy. और ये फोर्स लगाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. The energy is the ability of a body to do work. किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है एनर्जी काम करने के लिए. Machines also need energy to work. अब मशीन्स जब काम करती हैं तो मशीन्स को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. They get this energy from fuels they run on or from the electricity. जिस भी फ्यूल से वो चलती है मशीन वो उसकी एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी उसकी एनर्जी होती है.
सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के? There are many sources of energy in nature such as the sun, wind, water, coal and fossil fuels. ये सभी एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो नेचर देती है। Let us study some of the main sources of energy. चलिए अब मेन सोर्सेज जो एनर्जी के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी। The sun is the main source of energy on the earth. अर्थ पे जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन है। द सन्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और जो सन की एनर्जी है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। द ग्रीन प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। यू ऑलरेडी हैव लर्न दिस कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये सन से जो लाइट मिलती है उससे जो एनर्जी मिलती है उससे अपना खाना बनाते हैं। Humans and herbivores get energy when they eat plants. और जब humans और herbivores plant को खाते हैं तो उससे उनको एनर्जी मिलती है। Carnivores get energy from herbivores when they eat them. और जो carnivores होते हैं वो जब herbivores को खाते हैं वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है। We also use solar energy to cook food using a solar cooker. आजकल सोलर एनर्जी का बहुत यूज़ होता है और सोलर कुकर को यूज़ करके खाना भी बनाया जा सकता है। सोलर पैनल्स यूज़ सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो सोलर पैनल्स लगते हैं घरों के ऊपर या फैक्ट्रीज के ऊपर, तो इससे क्या होता है? सोलर एनर्जी यूज ली जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट कम्स द विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड किसे कहते हैं? जब एयर मूव करती है उसे कहा जाता है विंड। द विंड हैज एनर्जी विच इज यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और विंड में वो एनर्जी होती है जिससे कि जो विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं, दीज आर द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, ये घूमते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। Windmills are used to pump water and to grind grains like wheat. और विंडमिल का यूज़ वाटर पंप करने के लिए भी किया जाता है और ग्रेन्स जैसे व्हीट को ग्राइंड करने के लिए भी किया जाता है। अ विंडमिल यूजेस विंड एनर्जी टू मूव। नेक्स्ट इज वाटर एनर्जी। फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी। इट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स थ्रू टर्बाइन्स। अब जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें भी एनर्जी होती है। अब क्या होता है? ये हाइट से थ्रू टर्बाइन्स गिरती हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो एनर्जी फ्लोइंग वाटर से जनरेट होती है उसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Dams have been built to allow water to fall from height to generate electricity. और हाइट से वाटर को गिरने के लिए डैम्स बनाए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। See, a hydroelectric plant. Geothermal energy. Geothermal energy is the heat of the earth. Geothermal energy earth की heat होती है। Resources of geothermal energy range from the shallow ground to hot water and hot rock found a few miles beneath the earth's surface. Now children, ये जो resources हैं geothermal energy के, ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करती हैं? shallow ground से लेके गर्म पानी तक, hot water तक और hot rocks तक, जो कि कहाँ मिलती हैं? few miles beneath the earth's surface, earth surface के नीचे। See, the geothermal energy heats water under the ground. Next is atomic energy. An atom is the smallest particle of matter. Matter का सबसे छोटा particle होता है atom. It contains stored energy which is called atomic energy. और इसके अंदर जो energy होती है उसे कहा जाता है atomic energy. It is obtained by splitting atoms. और ये कैसे आती हैं? जब एटम स्प्लिट होते हैं उससे ये एनर्जी फॉर्म होती है, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक एनर्जी का भी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। एन एटम बॉम्ब इज अ वेपन विच रिलीजेज एनर्जी फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज। और ये जो एटम बॉम्ब है चिल्ड्रन, इसके एनर्जी को ये एक वेपन है और ये रिलीज करती है एनर्जी डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए। इससे जब एनर्जी रिलीज होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है। Atomic energy is generated in a nuclear power plant. Nuclear power plant में atomic energy generate होती है।
नाउ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स, फ्यूल्स से कौन कौन सी एनर्जी? कोल, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी एंड वुड आर फ्यूल्स। ये सभी फ्यूल्स होते हैं। दे आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। इनको बर्न किया जाता है और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और एनर्जी। डीजल, पेट्रोल एंड सीएनजी आर यूज्ड इन व्हीकल्स एज फ्यूल्स। हम सभी जानते हैं व्हीकल्स जो चलती हैं, हमारे कार है, डीजल की भी होती है, पेट्रोल की भी होती है, सीएनजी भी यूज होता है इसमें। कोल इज बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। वुड इज यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट, वुड को भी जलाया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। लुक, दिस इज अ सीएनजी सिलेंडर इन अ कार। नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स कौन से हैं? There are many forms of energy such as heat energy, electric energy, chemical energy and sound energy. These are different types of energy. We use these forms of energy for different purposes. अलग अलग पर्पस के लिए इन एनर्जी फॉर्म्स का यूज किया जाता है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से। We use light energy to see things. लाइट एनर्जी का यूज करके हम चीज़ों को देखते हैं। We use heat energy to get heat. हीट एनर्जी का यूज किया जाता है गर्मी के लिए। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर बॉइलिंग वाटर, और हीट एनर्जी को इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है वाटर बॉईल करने के लिए। वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट बल्ब्स एंड टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, गीजर्स एंड आयरन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी चलाने के काम आते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसीज, गीजर और आयरन। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर। एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड टू हीट एनर्जी इन हीटर्स एंड ब्लोअर्स। हीटर्स और ब्लोअर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है? हीट एनर्जी में। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं जब अपना फूड बनाते हैं। When we switch on an electric bulb, electrical energy is converted into light and heat energy. अब हम किसी बल्ब को जब स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट और हीट में। When we switch on an electric fan, electrical energy is converted into mechanical energy. फैन को स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स wrap up what we have read in this chapter. A push or a pull is called a force. A force can change the shape of an object. It can stop a moving object or can make a stationary object move. जब फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है, और फोर्स से ही मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है और रुकी हुए ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन के डायरेक्शन को भी फोर्स ही चेंज करता है। नाउ चिल्ड्रन, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं ये सब। Work is said to be done when a force moves an object to a certain distance. Machines make our work easier and faster. A lever, inclined plane, pulley, wheel and axle, screw and wedge are some simple machines. The ability of an object to do work is called energy. The sun, atom, water, wind, fuels and earth are sources of energy. ये सभी क्या है? एनर्जी के सोर्सेस हैं। There are many forms of energy. Energy can be changed from one form to another. Now children, let's move further. Yes, now we'll check the progress. Check your progress. Okay? Tick the correct option. The force with which the earth attracts everything towards it is. अब वो फोर्स क्या कहलाता है जिससे कि अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स।
It's the gravitational force. A bulb converts electrical energy into. बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. इट कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी. When a balloon is rubbed with dry hair, it develops an electrostatic force, a magnetic force, a gravitational force. It develops an electrostatic force. We are able to walk because of. हम चल पाते हैं किस वजह से? Frictional force, gravitational force, electrostatic force. It's the frictional force. Hydroelectricity is generated from water, wind, sun. It is generated from water. Okay? Now let's move further. Fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. To open a door, we have to apply a force or energy. We have to apply a force. Okay? A force can change the dash of an object, volume, shape. It can change the shape of an object. When we apply force, it can change the shape of the object too. Dash are used to separate iron mixed with other waste in a factory. जब फैक्ट्री में दूसरे वेस्ट मटेरियल्स के साथ आयरन मिक्स हो जाता है तो उसको अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं? सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो राइट डाउन हियर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. Okay children? Next, smooth surface exerts dash friction than rough surface. More or less. So smooth surface exerts less friction. A seesaw is an example of dash lever or inclined plane. It's an example of lever. State whether true or false. Parts of machines go wear and tear because of friction. Yes, this is true. Pulleys are used to move parts of vehicles. False. A screw is used to put things together. Yes, this is true. So write down T here. The sun is the main source of energy on the earth. Yes, children, this is also true. So we write T here. A stone throwing up comes to the ground because of magnetic force. Is it true? No, this is not true. It comes down because of the gravitational force. So we write down F here. A force cannot change the shape of an object. This is false. So again we write F here. Okay? So I hope children you all have very well understood this chapter, and wasn't it an interesting one? Yes, this was very interesting chapter. So just go through the chapter once again so that you understand it much more better. Okay children, we'll meet again with a new chapter, something new, something more interesting. Till then, keep learning, be happy, bye, and thanks for watching the video.